Myself Ankur Badhwar, and this is part 2 of the weekly current affairs. We were discussing 4th week of April, the time period from 19th of April to 25th of April. Okay, so part 1 I have already rolled out. It came yesterday. You can watch it. The link is in the description below. You can go through the playlist. Entire playlist from first week of from 1st of April is available in the channel. Okay, so we completed the subfolder number 1, that is the banking awareness, economy and finance. This is in this video we will cover subfolder from 2 to 15. As I told you in the starting, there are 15 subfolders we have for the current affairs, and we will doing it one by one. So let's start today. Just hold on. So for subfolder number 2, that is sports. There was some sports news in this week. There have been very little sports activity in the past weeks. आपको सबको पता है स्पोर्ट्स क्या जो भी इवेंट्स है बल्कि सारे के सारे एक एक करके कैंसिल होते जा रहे हैं. सो वेरी फ्यू एक्टिविटी. लेट्स सी सम न्यूज़. टीम मास्क फोर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट COVID-19. नाउ इट इज़ अ BCCI initiative. You must be aware, Virat Kohli is coming in the ad, Saurav Ganguly and all will be coming in the ad. So this is an initiative for that. Board of Control of India. What the question can come from this? First of all, whose initiative is this? Team Mask Force. The second question can be, we are the headquarters of BCCI, which is at Mumbai. Okay, so let's go there. Headquarters at Mumbai. So next current affairs, Asian Boxing Championship in November. Yeah, I forgot one thing more. I told you in the first part that we will be discussing the interest rate relation with that of bond price and that of bond yield. I forgot to do it in the starting. Now let's complete these subfolders and then we will do it at the end in detail. Okay, so all the confusion regarding how bond price vary with the interest rate and how bond yield vary with the interest rate or the bond price, we will be covering that in great detail. Okay, so watch out till the end this video. So Asian Boxing Championship will be held or will be hosted by India. So this can come in the sports. Already there are very few sports news. As you are aware कि मैंने आपको strategy videos में बताया था 6 to 10 questions out of 80 questions in RB Gate B are coming from the sports section. But nowadays very few sports activities. Let's see how it fares. So very few sports news. बहुत ही कम स्पोर्ट्स न्यूज़ है तो थोड़ी बहुत है वो तो कर ही लो. ओके, सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन सब फोल्डर इज PV Sandhu इज द एम्बेसडर ऑफ IM बैडमिंटन कैंपेन बाय द BWF, दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. ओके, सो दिस करंट अफेयर्स कैन कम फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन इन सेबी, नाबार्ड. एंड नाबार्ड में तो अब सिर्फ फेज़ 2 होगा. नाबार्ड में ओनली फेज़ 2 is left. So NABARD में ESI related and the agriculture related current affairs are important. Okay, so अगर कोई NABARD का phase 2 attempt कर रहा है, phase 1 clear हो चुका है, then focus on that news. These sports news can come in SEBI grade and RBI grade B, but they are not going to come for NABARD offshore. Okay, so let's go to next current affairs, portal schemes. And also this is the end of subfolder number 2. Only these 2-3 news from the sports section. इस पर simple current affairs MCQs कैसे बनेंगे? Who is the ambassador? That is PV Sandhu. एक ही क्वेश्चन इसमें से MCQ बन सकता है. So we will start with the subfolder number 3, that is portal schemes and campaign. So first current affairs is COVID India Seva to address citizens query. It is launched by the health ministry. So direct MCQ will be there. Who has launched the COVID India Seva? That is the health ministry of India. एक MCQ बना. Who is the health minister? Dr. Harshvardhan. Second MCQ. बस इसमें से यही 2 MCQs बन सकते हैं. So let's move to next current affairs. सुजलम सुफलम जल संचय अभियान. That is a जल scheme of Gujarat government. Okay, and the aim of the scheme is to deepening of the lakes, check dams and river by removing silt. So these 2 MCQs can be formed. ये किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है? दैट इज़ द गुजरात गवर्नमेंट. सेकंड करंट MCQ कैन बी व्हाट इज़ द एम ऑफ द स्कीम? दैट इज़ द डीपनिंग ऑफ द लेक्स, चेक डैम्स एंड रिवर्स. सिर्फ 2 ही MCQ इस करंट अफेयर्स में से बनेंगे. सो
So let's go to next current affairs. CCA gives green light to 2,187 crore fertilizer dole. Let's see what is the news. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the nutrient-based subsidy of 22,187 crore for phosphatic and potassium. आपको पता होगा potassium, phosphate, potassium by K and nitrogen are the main macronutrients for the crops. ये आपने शायद 9th या 10th क्लास की साइंस क्लास की एनसीईआरटी में साइंस के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा. सो इसमें से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, वी विल सी दैट. सो एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है आपका, हु इज़ द हेड ऑफ CCA, दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज ऑनरेबल नरेंद्र मोदी. ओके, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, हु इज़ द हेड ऑफ CCEA. आपको पता होगा RBI में आपका एक टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. ये हमने डिटेल में मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं, ब्रीफ में किया था. शॉर्ट फॉर्म में आई ट्राई टू कवर इन 3-4 आवर्स द एंटायर पॉलिटी विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. और जब मैं ESI के वीडियोस बनाऊंगा उसमें भी कवर करवाऊंगा इसको. सो उसमें से ये सेक्शन में से ESI के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है. इनफैक्ट फेज़ 1 में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है RBI ग्रेड B के. ओके, PM किसान स्कीम के बारे में आपको पता होगा. इसका एलोकेशन मुझे इसका जो बजट एलोकेशन है मुझे इसको लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिखो. ओके, सो अब एक चीज़ याद रखना, जो गवर्नमेंट है न्यूट्रेंट एंड वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर सब्सिडी फिक्स करती है PNK की, बट यूरिया के केस में मैक्सिमम रिटेल प्राइस को फिक्स किया जाता है. बट इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसमें से करंट अफेयर्स आने के चांसेस बहुत कम है. सो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं MCQs आपके. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ द हेड ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. सेकंड क्वेश्चन PM किसान स्कीम के बारे में क्वेश्चन MCQ आ सकता है. थर्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका यूरिया सब्सिडी जो है, यूरिया किस चीज़ को, विच इज़ द मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज़ द नाइट्रोजन. यूरिया आपको पता होगा यूरिया क्या चीज़ होता है, यू मस्ट हैव डन इन दिस साइंस. यही 2-3 MCQs बन सकते हैं. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स. विद्याधन 2.0 by MHRD. नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें से कुछ नहीं है. दैट इज़ लॉन्च बाय द HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक. ई लर्निंग के रिलेटेड है. सो वट एवर द क्वेश्चन विल कम दैट विल बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, एक ही MCQ इसमें से बनता है. दूसरा MCQ बन सकता है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ HRD करंटली. यही 1 या 2 MCQs मैक्सिमम इसमें से बन सकते हैं. सो दैट इज़ द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 3. ओके, नाउ विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 4, दैट इज़ अपॉइंटमेंट्स एंड कमेटीज़. सो इसमें पिछले वीक कोई न्यूज़ नहीं थी इसमें इम्पोर्टेंट है, बट एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट आपके पास, दैट इज़ संजय कोठारी. ही हैज़ बीन अपॉइंटेड इसको अपॉइंट किया गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को. CVC की पोस्ट में इसको अपॉइंट किया गया. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यूज़. ही हैज बीन सिलेक्टेड द न्यू सेंट्रल विजिलेंस बाय हाई पावर्ड कमेटी बाय नरेंद्र मोदी. नाउ मुझे इसमें से एक चीज़ लाइव चैट या कमेंट सेक्शन में लिखो, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अ स्टैच्यूटरी बॉडी और अ एग्जीक्यूटिव बॉडी या नन ऑफ दिस. मुझे कमेंट सेक्शन लाइव चैट में लिखो ये कौन सी बॉडी है. ये क्वेश्चन इसमें से बन सकता है. सो इसमें से क्या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं. अपॉइंटमेंट में हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर फर्स्ट, और दूसरा कि CVC जो है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है. ये क्वेश्चन बन सकता है. सो 2 MCQs इस न्यूज़ आइटम में से या फिर करंट अफेयर्स में से बन सकते हैं. सो लेट्स, और दैट इज़ द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 4. इस वीक में बस एक ही अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट है RBI ग्रेड B से B नाबार्ड के लिए, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी. अब आप बाकी कई जगह देखोगे कि बहुत ही इररेलेवेंट अपॉइंटमेंट्स भी दे रखी होती है. ट्रस्ट मी, दैट विल ओनली वेस्ट योर टाइम. ओके, अगर आप हर किसी लल्लू पंजू बैंक के CMD को याद करने लग गए तो याद कुछ नहीं रहेगा और अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा और दैट कैन बी रीज़न फॉर योर फेलियर. सो जस्ट कंसंट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स. ओके, आलतू फालतू का अपॉइंटमेंट्स मत करना. अब ओबीसी में भी मैं देखता हूँ कई मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं दूसरी PDF देख के, सर ये देखो ये मर गया, ये इसमें दे रखा है. अरे भाई, दुनिया की 800 करोड़ पॉपुलेशन है, कोई ना कोई तो गुजरता रहेगा, उसमें से काफ़ी लोग राउंड भी होएगा. तो हर किसी की ओबीसी याद करते रहोगे क्या RBI एग्ज़ाम के लिए?
फुलिशनेस मत दिखाया करो, जितनी मैं ओबिचुरीज और अपॉइंटमेंट्स दे रहा हूँ दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर बहुत ही लेस से 99% में तो इसमें से आएगी, दैट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट 4 ईयर ट्रेंड। अगर 1% कोई बहुत ही रिमोट आ भी गई, उसके लिए आप इतना टाइम वेस्ट कम से कम 500,000 ओबिचुरीज याद तो नहीं करने बैठोगे ना। इट्स बेटर टू यूटिलाइज दैट टाइम ऑन प्रैक्टिसिंग द स्टैटिक पार्ट ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कितनी चीज़ें हैं उसमें आप 20 मार्क्स स्कोर करोगे जितना आप 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे। गेटिंग दैट? सो बी स्मार्ट, डोंट बी फुलिश। ओके, आई विल गो टू नेक्स्ट सब फोल्डर नंबर 5, दैट इज मीटिंग, समिट एंड इवेंट। सो G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट ऑर्गेनाइज बाय सऊदी अरेबिया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जुलाई 4 को आपका सेबी का एग्ज़ाम है। मुझे लग रहा है ये डिले होगा, और आपका जो आरबीआई का एग्ज़ाम है वो मुझे नहीं लगता अक्टूबर या फिर नवंबर से पहले होगा। चांस बहुत ही ज़्यादा कम है कि अक्टूबर नवंबर से पहले आरबीआई गेट बी का एग्ज़ाम होगा। अब ये जो G20 एग्रीकल्चर मीट है ये आ सकता है क्वेश्चन, पर चांसेस कम है क्योंकि ये अभी हो रही है। अगर आपके एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले हो रही होती तो मैं कह देता हाँ, अगर सेबी में अगर 4 जुलाई को एग्ज़ाम होता तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसने अटेंड की थी? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। ओके, और किसकी प्रेजिडेंसी में हुई थी? सऊदी अरेबिया। अब कंट्री आ गई, इंडिया का रिलेशन आ गया उस कंट्री से, तो उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी पूछी जा सकती है। तो कैपिटल है सऊदी अरेबिया की रियाद, और जो करेंसी है सऊदी अरेबिया की वो है सऊदी रियाल। ओके, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। इसमें से क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं? क्वेश्चन आएगा रिसेंटली G20 एग्रीकल्चर मीट वाज हेल्ड अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ, एक क्वेश्चन बना आपका एमसीक्यू सऊदी अरेबिया, इसका आंसर आपको पता चल गया। दूसरा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ये दूसरा एमसीक्यू बन गया। तीसरा सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? चौथा सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? यही 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं। सो दैट वाज द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 5। एक ही रेलेवेंट मुझे मीटिंग, समिट या इवेंट दिखा आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स में, जो आपके आरबीआई, सेबी, नाबार्ड और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है। ओके, कई बार जो होता है क्या होता है, एसबीआई और आईबीपीएस में बहुत ही रेलेवेंट भी कई बार पूछ लेते हैं, बट आरबीआई, सेबी, नाबार्ड में नहीं पूछते। उनका एक स्टैंडर्ड होता है, वो उसको मोस्टली फॉलो करते हैं। बट आरबीआई क्या करता है, आरबीआई से भी 1 महीने पहले जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें कुछ इरेलीवेंट मैं कहूँगा वो भी पूछ लेते हैं, बट वो एकदम लेटेस्ट होते हैं। ओके, अभी 6 महीने हैं, वो इतने इरेलीवेंट करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे। ओनली रेलेवेंट करंट अफेयर्स विल बी आस्क्ड, क्योंकि अभी एग्जाम में अभी 5 से 6 महीने हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू वन इम्पोर्टेंट सब फोल्डर, दैट इज डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज अ इम्पोर्टेंट सब फोल्डर। फेज़ 1 की मैं अगर बात करूँ तो ओके, लेट्स सी व्हाट इज द न्यूज़। किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो डायरेक्ट एमसीक्यू एक ये बन गया, किसान रथ मोबाइल ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है और डेवलप किसने की है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। ये दूसरा एमसीक्यू बन गया, और एनआईसी के हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में, दैट इज़ द थर्ड एमसीक्यू। ये 3 एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं। हो सकता है इसका मिनिस्टर का नाम भी पूछ ले, चांस कम है, तो यही 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, सो what else can be the let's go to next current affairs. Ransomware ports cognizant image. Now इस पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पीछे आरबीआई गेट भी 2019 में, आई थिंक 19 या 18 में क्वेश्चन आया था, एक मेजर रैंसमवेयर अटैक हुआ था, तो उसका नाम पूछ लिया था उस वायरस का, मतलब कि कोरोना वायरस जैसा वायरस नहीं, कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा हूँ। वायरस से वैसे आजकल सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर वायरस। सो रैंसम बोर्ड्स कोग्निजेंट मेज, ये मेज रैंसमवेयर अटैक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इस पे आएगा। तो रिसेंटली कोग्निजेंट और द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज़ बीन अटैक्ड बाय रैंसमवेयर नेम मेज। ओके, डायरेक्ट एमसीक्यू विल बी देयर इफ इट ऑल विल कम। ओके, लेट्स गो टू, ये वही दे रखा है उसके बारे में। लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। वार्ड बोर्ड डेवलप्ड बाय आईआईटी रोपड़। नाउ अब देखो बहुत सारी इन्वेंशन हो रही है, ऐसा अब सारी इन्वेंशन आपको नहीं करनी, ओनली इम्पोर्टेंट इन्वेंशन रिलेटेड टू कोरोना वायरस। अब वो वार्ड बोर्ड इज डेवलप्ड बाय आईआईटी रोपड़। अब क्या ये एक रोबोट है जो यूटिलाइज हो सकता है लाइक मेडिसिन या फूड सप्लाई करने के लिए टू दी
COVID-19 पेशेंट्स। नाउ दिस कैन बी यूटिलाइज बाय द GOI। ये इन्वेंशन ऐसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे यूटिलाइज कर सकती है आगे जाके। सो ये इसकी एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए आपका CB ग्रेड ए में। अगर इसकी एक्सटेंसिव यूज़ होने लग जाता है तो और 6 महीने तक यूज़ होता है तो RBI में भी आपका आ सकता है, बट स्टिल नॉट सो इम्पोर्टेंट बट कैन कम। ओके, सो अब इतनी सारी इन्वेंशन में से मैं फ़िल्टर आउट कर रहा हूँ, ओनली रेलेवेंट मैं इन्वेंशंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं मैं वही पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दैट विल कवर 99% ऑफ ऑल द इन्वेंशंस। हाँ, 1% भी मैं बहुत सारे मैं छोड़ रहा हूँ, हो सकता है एक आध क्वेश्चन उसमें से आ जाए, बट वो इतनी सारी इन्वेंशंस हो जाएगी 20, 50, 100 कि उस एक मार्क्स के लिए आप वो 100 इन्वेंशन को नहीं कर सकते। और 99% चांसेस है जितना मैं आपको दे रहा हूँ उसके बाहर नहीं आएगा। ओके, that is based on the analysis of past 4 years, thorough analysis. So next current affairs, Mobile Virology Research and Diagnostic Laboratory MVRLD has been inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh। ये इतना important नहीं है, but किसने डेवलप किया? That is developed by DRDO। Direct question will be there, MVRLD किसने डेवलप किया? That is developed by DRDO, which is India first COVID-19 sample collection mobile lab। क्योंकि ये फर्स्ट है इंडिया की सच काइंड ऑफ इनोवेशन विच इज़ फर्स्ट, विच इज़ लार्जेस्ट, इस तरह के इन्वेंशंस पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। हर कोई इन्वेंशन को आपको नहीं करना। ओके, सो नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर टू फाइट COVID-19 इज डेवलप्ड बाय नासा। सो डायरेक्ट MCQ विल बी देयर, अ वाइटल अ हाई प्रेशर वेंटिलेटर हैज बीन डेवलप्ड बाय नासा, DRDO और सम यूरोपियन एजेंसी और सम रशियन एजेंसी और नन ऑफ दी, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन बना देंगे। सो एक MCQ इसमें से ये बन गया। और दूसरा पूछा जा सकता है कि नासा के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लेकिन जनरली नासा के चांसेस कम है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे इंटरपोल पे 2018 में क्वेश्चन पूछा था, यूनेस्को पे क्वेश्चन पूछा, इसके चांसेस कम है। फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नासा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 6। डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना ही। वी विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 7, दैट इज रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। ओके, so let's see what is all there. Mapping India's energy subsidies 2020 are reported by IIST and CEEW. So let's see, International Institute for Sustainable Development and Council of Energy, Environment and Water has launched a report titled Mapping India's Energy Subsidy 2020। अब ये याद रखना, these are not important agency। ये कोई UN की एजेंसी नहीं है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, IMF नहीं है, कोई रिनाउंड एजेंसी नहीं है। दे आर जस्ट एक थिंक टैंक है, दिस इज़ अ थिंक टैंक, और वो भी इंडिया का नहीं है, वो भी फॉरेन का। पर स्टिल उसमें से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली रिपोर्ट आई थी और किस एजेंसी ने लॉन्च की थी। सो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो एक ही MCQ बन सकता है इस पर, दैट इज IIST एंड CEEW ने कंबाइन करके ये लॉन्च की थी, एक ही MCQ बनता है। इस रिपोर्ट की डिटेल में आपको नहीं जाना है ESA के लिए। ओके, इसकी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये जो जिसने लॉन्च किया जिन एजेंसीज में, दीज एजेंसीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एजेंसीज। So let's move to next current affairs. Remittances to South Asia to tip 22%, ये होना ही होना है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, रेमिटेंसेस रिपोर्ट, वर्ल्ड रेमिटेंसेस इंडेक्स करके एक रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक, ईयरली निकालता है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि साउथ एशिया, अब साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्रीज़ आती है, उसका 22% ड्रॉप होगा। इंडिया का कहीं पे भी स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, बट अब मान के चलो, अब ये जो डाटा इसमें है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी हेयर केयरफुली, इंडिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट रिसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेस। आपको मैंने पहले भी स्टैटिक में भी बताया था, और इसको मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में भी बताया था, फिजिकल पॉलिसी में भी बताया था, और मैंने बैंकिंग अवेयरनेस में भी बताया था ऑफलाइन क्लासेस में, कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट रेमिटेंसेस। फर्स्ट इज इंडिया, सेकेंड नंबर पे आपका चाइना आता है, और थर्ड नंबर पे आपका मैक्सिको आता है। ये कभी भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कितना आया था इंडिया के पास 2019 में? एस्टिमेटेड है $83 बिलियन। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, आपको पता होगा, विच इज़ अबाउट 12% ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेड ग्लोबल इनफ्लो। अब सीट केयरफुली, इंडिया का बहुत सारा जो लाइक केरल की मैं बात करूँ या साउथ इंडिया की बात करूँ, गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है वहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में वापस भेजते हैं। रेमिटेंसेस क्या होता है? मतलब जो पैसे भेजते हैं अपनी फैमिली को, रिलेटिव्स को। तो
अब हो क्या रहा है कि एक तो लॉकडाउन हो गया ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उस डिमांड कम होने की वजह से जो गल्फ से जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो भी इम्पैक्ट हो गए, क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। यूएसए का जो ऑयल है वो तो नेगेटिव हो गया है, और ब्रांड क्रूड भी अराउंड $20 के आसपास पहुंच गया। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द ऑयल इन द वर्ल्ड। सो नेचुरली जॉब लॉस होगा, उनको जॉब्स नहीं मिलेगी, काम नहीं होगा, और उनकी रेमिटेंसेस जो इंडिया में आ रही है वो डिक्रीज़ होगी। इसके अलावा जो इंडियंस यूएसए में है, यूरोप में भी है, लॉकडाउन की वजह से वो भी इनकम अर्न नहीं कर रहे, और वो जो रेमिटेंसेस बेसिस है वो भी कम ही होनी है। तो 22% वर्ल्ड बैंक कह रहा है साउथ एशिया में, जिसमें से आप अगर इंडिया का लो तो 20-30%, और मैं कहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा डिक्लाइन होगा आने वाले टाइम पे अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्राउन। इसमें एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं कि ये रेमिटेंस रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बन सकता है। और क्या एमसीक्यू बन सकते हैं इसके ऊपर? लेट्स सी। सेकंड एमसीक्यू बन सकता है हु इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये कौन है वर्ल्ड बिगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस? दैट इज़ इंडिया, यू ऑल नो। ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली कितनी रेमिटेंसेस आए थे 2019 में? दैट वाज $83 बिलियन। ओके, यही 3 एमसीक्यूज आपके इसमें से बन सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। ये आपको पता ही है कि इंडिया के कितने रिजर्व्स है, 476 के आसपास है, कम ज़्यादा होते जा रहे हैं आजकल। और एक एमसीक्यू बन सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है इसके हेडक्वार्टर्स। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ रोल्ड आउट द रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। सो एक एमसीक्यू तो यही बन गया आपका कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस किसने कौन एजेंसी लेके आई है? दैट इज़ वो यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, और इसने ये सब चीज़ें बताई है, बट आपके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, क्योंकि ये यूएन की बॉडी है, सब्सिडरी बॉडी है, तो उसके हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ रोम, इटली। रोम, इटली। अब हेडक्वार्टर्स भी वही आपके एग्जाम में आएंगे जो एजेंसी न्यूज़ में है। न्यूज़ बोले तो करंट अफेयर्स में जो एजेंसी है वही आपके हेडक्वार्टर्स पूछे जाने हैं। ओके, कुछ स्टेटिक में आपको हेडक्वार्टर्स में कराऊंगा, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एआईआईबी, एनडीबी बैंक, इन सब के मैं आपके लाइक कुछ प्रोमिनेंट इंडिया के बैंक्स हो गए, एचडीएफसी, ऐसे ही वो स्टेटिक में भी मैं करवाता हूँ, बट यूजुअली जो चांस उन्हीं के ज़्यादा होते हैं जो करंट अफेयर्स में है। और ये जो हेडक्वार्टर में स्टेटिक की बात कर रहा हूँ वो भी करंट अफेयर्स में आते ही रहते हैं। जैसे एचडीएफसी हमेशा न्यूज़ में रहेगा ही रहेगा, उसके हेडक्वार्टर से पूछते जाए, या फिर आजकल पेटीएम पेमेंट बैंक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, जैसे कि हेडक्वार्टर नोएडा में है। तो ये मैं स्टेटिक में नहीं कराऊंगा, बट स्टिल करंट अफेयर्स में तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। एसबीआई का मैं हेडक्वार्टर आपको कराऊंगा स्टेटिक में, बट एसबीआई कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स में एक दिन छोड़ के या डेली आपको न्यूज़ में दिख ही जाएगा। सो बहुत ही ओवरलैप है, स्टेटिक और करंट अफेयर्स में भी ओवरलैप है आपका। ओके, ये सब मैंने स्ट्रेटजी वीडियोस में आपको बता रखा है। अगर आपने स्ट्रेटजी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 4 वीडियोस में लेके आ चुका हूँ। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया कि कैसे आपको बांटना है फोल्डर्स, सब फोल्डर्स में से, और मैं उसके बाद थर्ड और फोर्थ जो स्ट्रेटजी वीडियो उसमें एक एक क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी 2018 का एक एक क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है कि मान लो अगस्त में पेपर था तो जुलाई में से कितने क्वेश्चन हैं, जून में से कितने हैं, मई में से, अप्रैल में से कितने हैं, बजट में से कितने हैं, और आपको मतलब क्या ट्रेंड फॉलो करना है। इसके अलावा जो मैंने सब फोल्डर्स बनाया है 3 फोल्डर्स एंड 15 सब फोल्डर्स, उसमें से कितने कितने क्वेश्चन आए आपके 2018 एग्जामिनेशन में। अभी मैं स्ट्रेटजी 5 एंड 5th एंड 6th वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं 2019 जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करूँगा। ये भी बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था, कितना पुराना था, सब चीज़ें मैं आपको 5th एंड 6th जो स्ट्रेटजी वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स गो टू next current affairs. So that was the end of subfolder number 7. Now we will move to subfolder number 8. एनवायरनमेंट। इसमें से कोई भी न्यूज़ मुझे रेलेवेंट नहीं लगी पूरे वीक में। सो विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 9। कोई भी इंपॉर्टेंट अवार्ड सेरेमनी नहीं लगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सो नो न्यूज़ और करंट अफेयर्स फ्रॉम दिस सब फोल्डर। वी विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 10 इंपॉर्टेंट डेज। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम डिस्कस करेंगे। सो पहला दिन है आपका 18th of April, दैट वाज द वर्ल्ड हेरिटेज डे।
कि हेरिटेज डे आपका आर्ट एंड कल्चर है और आपके इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, म्यूज़ियम पूछ लेता आपका 2018 में, बट क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपके करंट अफेयर्स में चल रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर में से, या फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको स्टैटिक में कवर करवाई थी ESI में, और मैं आपको यहाँ पे भी मैं जब ESI चालू होगा या फिर मैं आपको स्टैटिक में भी ये फेज़ 1 में भी मैं स्टैटिक के कवर करवाऊँगा इन वीडियोज़ को, ओके। बट ये आपको पता नहीं वर्ल्ड हेरिटेज डे इज़ ऑन 18 अप्रैल, उसकी थीम भी पूछी जाती है कई बार, शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप याद कर लेना, यही 2 MCQs आपके बनते हैं। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ये तीसरा MCQ आपका इसमें से बन सकता है, दैट इज़ इन पेरिस, फ्रांस। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट एजेंसी यूनेस्को हेडक्वार्टर्स, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को कभी ना कभी रेगुलरली न्यूज़ में रहता ही रहता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, न्यूज़ में रहते ही रहता है, तो इसके हेडक्वार्टर्स कभी आपके RP ग्रेड भी सेबी और नबार्ड में पूछे जा सकते हैं। सो सेकंड करंट अफेयर्स इज अप्रैल 22 अप्रैल विच इज़ नोन एज दी अर्थ डे। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए ये एक इम्पोर्टेंट डे है जो पूछा जा सकता है। 22 अप्रैल एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है और अब की बार की इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। सो यही 2 MCQs मैक्सिमम इसमें से पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट करंट अफेयर ये 25 अप्रैल, दैट इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे। अगर रेगुलरली होता तो मैं कभी भी इस डे को नहीं देता, बट आजकल एक मेडिसिन की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जो ट्रंप ने भी इंडिया को धमकी दी थी कि हम रिटेलिएट करेंगे अगर इंडिया ने वो मेडिसिन दी थी। वो क्या थी? एंटी मलेरियल मेडिसिन थी। आपको याद आ गया होगा कौन सी मेडिसिन है, क्योंकि हमने जो वीक 1 और 2 की वीडियोस में भी इसको हमने कवर किया था। ओके, सो लेट्स सी, मैंने दे रखा है इसमें, डोंट वरी, मेडिसिन का नाम भी दे रखा है। थीम इसकी ये है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, ये भी पूछी जा सकती है, एंड द मेडिसिन नेम इज़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये क्वेश्चन कभी भी मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी न्यूज़ में है ये क्वेश्चन, कभी भी सेबी और नबार्ड और आपका RBI ग्रेड बी में पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ कीप अ ट्रैक ऑन दैट। तो सब फोल्डर नंबर 10 में इतना ही, सिर्फ यही रेलिवेंट था। वी विल मूव टू नेक्स्ट सब फोल्डर, दैट इज़ इंटरनेशनल न्यूज़। लेट्स सी व्हाट इज इन यूएस ऑयल प्राइसेस इन नेगेटिव जोन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि माइनस ये समवेयर -3.7, अब तो -30 के आसपास से पहुँच गया है अगर मैं आज की बात करूँ, क्योंकि वीक के है, ये पहले की न्यूज़ है, इस वीक के स्टार्टिंग की न्यूज़ है। अब मैं वीक के एंड में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत ही बुरी हालत है US से क्रूड की, तो और ब्रेंट जो है वो भी आप देखोगे 20 के लिखा है, लेकिन अब ये 20 के आसपास पहुँच गया और ये और ज़्यादा डाउन होगा। अब आप जस्ट इमेजिन करो, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वो $20 to $25 उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है पर बैरल, और इंडिया की मैं ONGC जो प्राइमरी एजेंसी है वो $40 to $45 की प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी। अब जब ऑयल $20 का सेल होगा मार्केट में, या 15 का, या उससे भी कम, एवरी कंपनी इज़ मेकिंग लॉस। और स्पेशली मैं अगर शेल ऑयल की बात करूँ, वो तो $40 के आसपास उसकी कॉस्ट पड़ती है, और USA में अब वो नेगेटिव में जा रहा है। तो सारी ही की सारी कंपनी जो USA की है वो बंद होने की कगार में है या बंद हो चुकी है इतने कम प्राइस की वजह से। ओके, सो हो क्यों रहा है कि डिमांड जो सप्लाई जो डिमांड है क्रूड ऑयल की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, स्लम्प आ गया है। वाई? ड्यू टू लॉकडाउन। ऑल द मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर अंडर लॉकडाउन करंटली। तो USA जो नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया था क्रूड ऑयल का, हाँ जी, ये याद रखना, USA इज़ नाउ द वर्ल्ड नंबर 1 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। सऊदी अरेबिया, रशिया नहीं है, USA है, ये ध्यान रखना। क्यों है? वहाँ पे शेल ऑयल का बूम आया था। शेल ऑयल से मतलब हाइड्रोफ्रैकिंग एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो रॉक को ब्रेक करके ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके थ्रू USA में बहुत ज़्यादा शेल रॉक्स है जिसके थ्रू वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा था और नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया था ऑयल का। नाउ द कंडीशन इज़ बैड। तो ये सारी ऑयल गेम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, दैट इज़ 3rd वीक ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने डिटेल में आपको पूरी ये ऑयल गेम बताई थी। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, आपको सारा समझ आ जाएगा व्हाट इज़ द ऑयल गेम, क्या ये ऑयल का सब कुछ है, ओपेक के बारे में सब कुछ बताया था मैंने। प्लीज़ सी दैट वीडियो। ओके, सो आई विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। बीजिंग नेम्स आइलैंड्स इन डिस्प्यूट साउथ चाइना सी।
अब क्या हो गया, ये फिर इसने हरकतें चालू कर दी है चाइना ने। साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट काफ़ी सालों से चल रहा है, 3 साल के आसपास हो गए। अब इसने फिर वहाँ पर हरकतें चालू कर दी है कुछ ना कुछ कि ये मेरा आइलैंड है, ये मेरा आइलैंड है, आसपास की कंट्रीज़ है उससे लड़ाई करता रहता है। बट जो आइलैंड सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं वो आपको याद रखने की जरूरत है, वो शायद आपके एग्ज़ाम में आ जाए। द आइलैंड्स आर दीज वन, दैट इज़ स्पार्टली एंड पार्सल आइलैंड, दीज आर इन द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये याद रखना। यही एमसीक्यू बन सकता है आपका इस एग्ज़ाम में से और इस करंट अफेयर्स में से। सो विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। कैनबिस जो भी है ये कैनबिस फार्मिंग लीगलाइज इन लेबनान। नाउ इट इज़ द फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज। फर्स्ट अरब कंट्री ना होती तो मैं ना देता आपको, बट फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज है तो फॉर द मेडिकल पर्पस। सो ये शायद आ जाए। एक एमसीक्यू बन गया, हु इज़ द फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज, दैट इज़ लेबनान। दूसरा कैपिटल क्या है लेबनान की, दैट इज़ बेरट। और मेरे कमेंट सेक्शन में इसकी करेंसी का भी नाम लिखो। इसकी करेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट मुझे लाइव चैट है, कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ इसकी करेंसी क्या है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज़ RBI gives श्रीलंका 400 millions ऑफ डेट फैसिलिटी। अब ये क्या है, टू बूस्ट श्रीलंकाज फॉरेन रिजर्व विच इज़ व्हाट इज़ द अमाउंट 400 मिलियन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई ने किस कंट्री को डेट फैसिलिटी दिया 400 मिलियन की, दैट इज़ श्रीलंका। एक एमसीक्यू बन गया। या पूछा सकता है कि आरबीआई ने रिसेंटली श्रीलंका को डेट फैसिलिटी है उसका अमाउंट कितना है, दैट इज़ 400 मिलियन। ये दूसरा एमसीक्यू बन गया। और कैपिटल ऑफ श्रीलंका पूछी जा सकती है, दैट इज़ कोलंबो एंड श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। अब इसकी दो कैपिटल्स है, जो कोलंबो है वो उसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, और जो श्री जयवर्धना कोट्टे है दैट इज़ द लेजिस्लेटिव कैपिटल, जहाँ पे उसकी पार्लियामेंट और वो सब होती है। ओके, अगर सिर्फ कैपिटल में पूछे और दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो आपको श्री जयवर्धना कोट्टे मार्क करना है, क्योंकि वहाँ पर उसकी पार्लियामेंट है, ये ध्यान रखना। हालांकि इस पे से कैपिटल का आने का चांस बहुत कम है, बस स्टिल ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। ऐसे मुझे याद आ रहा साउथ अफ्रीका जो है उसकी 3 कैपिटल्स है। ठीक है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप लाइव चैट बॉक्स में या नीचे कमेंट सेक्शन में इसको बताइए। सो वी विल मूव टू दैट्स ऑल फ्रॉम सब फोल्डर नंबर 11। वी विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 12, दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर। लेट्स सी व्हाट इज द न्यूज़ देयर। नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो इंपॉर्टेंट है। अब ये याद रखें, इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, और टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल में आपका क्या आता है, जैसे डांस आ गया, ओके, थिएटर आ गया, ओके, और थिएटर, प्ले और सिंगिंग आ गया, ये सब चीज़ें आपका इंटेंजिबल आर्ट फॉर्म्स में आता है। टेंजिबल में आपका पेंटिंग्स आ गई, आर्किटेक्चर आ गया, जैसे ताजमहल, और ये सब सारा टेंजिबल में आ जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द न्यूज़। The national list of intangible cultural heritage has been launched by the Union Minister of Culture प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, सो ये तो नहीं आएगा कि ये किसके अंदर आना है, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ही आना है, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ विजन 2024 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बन रहा है जो मुझे दिख रहा है कि नेशनल ये किसने लॉन्च किया है, अंडर विच विज़न इट इज़ अंडर विजन 2024 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एक ही एमसीक्यू बनता हुआ मुझे इसमें से दिख रहा है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज़ ओबिचुरी। इस वीक में एक ओबिचुरी थी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। अब मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी ओबिचुरी दे देता हूँ। आप कहोगे सर बाकी तो हर दिन कोई ना कोई ओबिचुरी दे रहे हैं। भाई 365 डेज़ है, मैं क्या आपको 365 ओबिचुरी दे दूँ याद करने को, जिसमें से रेलेवेंट सिर्फ 10 ही होनी है, बाकी 355 इररेलेवेंट होनी है, और आप इस चीज़ को याद करके अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। वैसे ही एक क्वेश्चन मैक्सिमम आना है, या बहुत ही हद होगी तो 2 क्वेश्चन आने हैं आरबी गेट भी या सेबी में। उसके लिए आप कितनी ओबिचुरीज याद करो, ओनली द रेलेवेंट ओबिचुरीज आई एम गिविंग, जो बहुत प्रोमिनेंट अवार्डी हैं या कुछ प्रोमिनेंट नेम है, सिर्फ उनके ही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उनके ही 99% चांसेस है कि उसमें से ही पूछा जाएगा। आलतू फालतू अब यूएसए में कोई सिंगर मर गया, मैं तो वो ओबिचुरीज भी देखी है कई वेबसाइट्स में। अब फ्रेंकली माई एम इज़ नॉट टू वेस्ट योर टाइम। होता तो मैं कह देता भाई ये कर लो और अपना टाइम वेस्ट कर लो, और बहुत स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते भी है।
पूरा टाइम करंट अफेयर्स को रट्टा मारने में लगे हुए हैं। और 2019 के अंदर दे हैव बीन स्टूडेंट्स मेरे आरबीआई के बैच में, क्योंकि फेज़ 1 में नहीं लेता था और उन्हें बल्कि में इतना ज़्यादा उनका फेज़ 1 हो गया, करंट अफेयर्स हो गया कि अल्टीमेटली उनको बाकी चीज़ों का टाइम प्रैक्टिस उन्हें की नहीं, क्वांट और रीजनिंग की। और कई स्टूडेंट्स जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे वो फेज़ 1 में रह गए क्वांट और रीजनिंग की वजह से। सो वो भी कहीं ना कहीं मुझे पेन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो आई हैव टेकन द इनिशिएटिव कि उनको गाइड करूँ कि वो इतने मिसगाइड ना हो और अपना टाइम वेस्ट ना करे, बिकॉज जितना मैं करा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, need not to do more than that at all. So let's move to what is the current affairs. Let's see. उषा गांगली renowned has been passes away, and इसको भी मैंने क्यों दिया ध्यान से देखना। she was awarded the संगीत नाटक संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर द डायरेक्शन 1998। उषा गांगुली कुछ अवार्ड मिला है, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकेडमी, कोई नाम था, आर्ट एंड कल्चर से रिलेशन है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी व्हिच कैन कम इन 1 मार्क। एक ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ज़्यादा हुआ तो 2 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं महीने में आपको 3-4 से ज़्यादा 5 ओबिचरीज से ज़्यादा नहीं दूंगा। 6 महीने में ज़्यादा आपको 20 से 25 ओबिचरीज ही मैं दूंगा, जिसको आपको याद करने। एक क्वेश्चन आएगा तो 99% चांसेस है कि इसी में से आएगा, और गलती से एक क्वेश्चन बाहर भी आ गया उसके लिए आपको 500 to 1000 ओबिचरीज नहीं याद करनी। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सब फोल्डर, दैट इज सोशल इश्यूज। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सब फोल्डर जितना फेज़ 1 के लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फेज़ 2 के लिए, स्पेशली अगर मैं ईएसआई की बात करूँ, क्योंकि ईएसआई की फुल फॉर्म ही है आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। लेट्स सी व्हाट इज द न्यूज़ देयर। सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स ऑन फास्ट। अब ये गिग वर्कर्स क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक एमसीक्यू इसमें से आ सकता है। गिग वर्कर्स होते हैं जैसे ओला, उबेर और जोमेटो और इन सब में जो काम कर रहे हैं ना, इनको पर डे सैलरी मिलती है कि जितना आप काम करोगे उस हिसाब को आपको पेमेंट मिलेगी। आप जिस दिन आपने काम नहीं किया उस दिन आपको पे नहीं मिलेगी। इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। सो दिस काइंड ऑफ वर्कर आर नोन एज गिग वर्कर्स। पिज़्ज़ा हट डिलीवरी बॉय, डोमिनोज डिलीवरी बॉय, ये सब गिग वर्कर्स को के अंदर आते हैं। और अब प्रोजेक्शन है कि इंडिया के अंदर इसकी क्योंकि इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं कि इसकी जो यही बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा और इसकी गिग वर्कर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो गवर्नमेंट इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई स्कीम लाने की सोच रही है। सो वही न्यूज़ है। तो ये मैंने क्यों दिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गिग वर्कर्स क्या होते हैं। एक एमसीक्यू इसमें बन सकता है। दूसरा आपका बन सकता है इसके अंदर ऑर्डिनेंस की बात की गई है। अब ऑर्डिनेंस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। ऑर्डिनेंस वो होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस इशू कराती है बाय, एक्चुअली प्रेसिडेंट इशू करता है बट सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे। अब उसकी जो वैलिडिटी होती है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स होती है। और जब पार्लियामेंट आती है, फॉर्म होती है, तो 1.6 वीक्स के अंदर उसको पास करना होता है। 6 वीक्स के अंदर पास करना होता है। तो आप चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पे भी दे रखा है। ऑर्डिनेंस आर लॉज है प्रोमोटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट। सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। आई होप ये आप गलती नहीं करोगे अगर क्वेश्चन आ जाता आपका ईएसआई में आरपी ग्रेड बी के अंदर, क्योंकि उसमें पूरा टॉपिक है आपका। दे कैन ओनली बी इशूड व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। यहाँ पे देखना, पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ देम विद इन 6 असेंबली, तो वो सीज हो जाते हैं। सीज मतलब ख़त्म हो जाता है ऑर्डिनेंस। और किसी हाउस ने अगर बीच में उसको पास नहीं होने दिया तब भी वो सीज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो कंपल्सरी फॉर सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। तो टोटल ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकती है? 6 मंथ्स, क्योंकि दैट इज ए टाइम पीरियड जिसमें पार्लियामेंट असेंबल होनी चाहिए, प्लस 6 वीक्स। So 6 months plus 6 weeks is the maximum duration of a ordinance. अब डोंट वरी, इतना डिटेल में क्वेश्चन आपका आरबी ग्रेड बी में नहीं आएगा, ये यूपीएससी में आता है ऐसे क्वेश्चन, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन क्या इसमें बन सकता है आपका। लेट्स सी, गिग वर्कर्स ऊपर वाला गिग वर्कर बन गया। ऑर्डिनेंस में पूछ सकता है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है, जो कि 6 मंथ्स होती है ऑर्डिनेंस की। ओके,
और जब पार्लियामेंट सेशन में आता है उसको कितने वीक तक पास करना होता है, दैट इज़ 6 वीक्स तक। और अभी किसको मॉडिफाई किया है, इसको प्रोटेक्ट करने का फ्रंटलाइन मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स की बात हो रही है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, इस पे ये एमसीक्यू बन सकता है, दैट विल बी थर्ड एमसीक्यू। यही 3 एमसीक्यूज इस करंट अफेयर्स में से बन सकते हैं। ओके, अभी मैं काफ़ी रिक्वेस्ट आई है मुझे एमसीक्यूज बनाने की, एमसीक्यूज भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, और सॉरी एमसीक्यूज कह रहा हूँ, क्विज़ में लेके आऊँगा एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए। अभी ये 4th वीक की वीडियो चल रही है, 1st, 2nd, 3rd, 4th सारे वीक की वीडियोस में लेके आऊँगा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है मुझे पर्सनली भी, ग्रुप्स में भी, तो कमेंट सेक्शन में भी। अब मुझे इसकी क्विज़ की वीडियोस लानी पड़ेगी। आई विल ब्रिंग आउट एवरी वीक। डेली नहीं ला पाऊँगा क्योंकि मुझे बाकी वीडियोस भी बनानी है ये सही एस की, वो भी डिले होता जा रहा है काफ़ी, तो मैं लेकिन जितना हो सकता है मैं बाकी की लेके आऊँगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। ऑस्टेरिटी मेजर्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, डीए हाइक नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का अगले 2021 तक। बेसिकली क्यों नहीं होगा, ये इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट फिस्कल पैकेज का प्लानिंग कर रही है, तो उसके लिए मनी को वो सेव कर रही है। अभी आपको पता होगा 30% कट हुआ है पीएम और सारे मिनिस्टर की सैलरी में, और पीएम लेड फंड दैट इज़ जो होता है पीएम लैड्स फंड, इस वास्ते फुल फॉर्म जो ये जो मेंबर्स ऑफ एमपी लैड्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का फंड होता है, जिसमें हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपीस मिलते हैं पर ईयर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेंड करने का, वो भी स्क्रैप कर दिया गया है अगले 2 सालों तक। आपको पता होगा इसका एलोकेशन भी हमने किया था एमपी लैड स्कीम का जो बजट में था। मुझे इसका एलोकेशन बताओ कमेंट सेक्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एलोकेशन आ सकता है, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, और 1st या 2nd वीक की वीडियो है, उसमें डिटेल में ये स्कीम कवर की गई है। प्लीज़ उस वीडियो को देखो, दिस कैन कम इन योर एग्ज़ाम। ओके, बल्कि 1 अप्रैल से जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उन सबको आप 1 से 2 बार कम से कम देखो, 2 बार देखनी चाहिए, और एट दी आपको याद हो जाए। फिर आपको क्या करना है, एट दी एंड एग्ज़ाम से पहले जो ये पीडीएफ्स है, हो सके तो एक बार फिर वीडियो देखनी है, या फिर नहीं देख पाओ तो कम से कम इन पीडीएफ को रिवाइज करना है 2 बार। इस तरह से आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी करंट अफेयर्स के लिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी आपको क्या करना है, 2 बार पीडीएफ और 2 बार वीडियो को देखना है फुली, जो अभी देखना है। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 1 बार पीडीएफ को रिवाइज करना है और 1 बार वीडियो को देखना है एग्ज़ाम से पहले। दैट विल कवर योर करंट अफेयर्स पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो फेज़ 1 में स्टैटिक पार्ट आता है उसकी भी वीडियोस में लेके आऊँगा, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगी, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। सो डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, और डीआर क्या होता है, डियरनेस रिलीफ। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आने के काफ़ी कम चांसेस है। लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। सो दैट वाज द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 14. सो वी विल मूव टू लास्ट सब फोल्डर, दैट इज मिसलेनियस सब फोल्डर नंबर 15. So let's see what is new. Shuttling to the top, story of PV Sandhu book released. So ये बुक रिलीज़ हुई है, द स्टोरी ऑफ पीवी संधू। किसने रिलीज़ की है, लेट्स सी। स्पोर्ट जर्नलिस्ट वी कृष्णा स्वामी। ओके, सो एक एमसीक्यू इसमें से बन सकता है। स्पोर्ट्स की वैसे ही बहुत कम न्यूज़ है, बुक्स पे तो ना के बराबर न्यूज़ आ रही है, क्योंकि लॉन्च हो ही नहीं रही लॉकडाउन की वजह से। जो एक का जो लॉन्च हो रही है तो उस पर से क्वेश्चन आ सकता है। सो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, पीवी संधू द स्टोरी ऑफ बुक नेम इज स्टोरी ऑफ पीवी संधू। 1 या 2 एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट एमसीक्यू सॉरी लास्ट करंट अफेयर्स से है, पोर्ट कंजेशन एड टू एक्सपोर्टर वॉर्स। अब ये कोई न्यूज़ करंट अफेयर्स आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो रेलेवेंट है कि इंडिया के कितने मेजर पोर्ट्स हैं। ये मैंने आपको ईएसए में कराए थे। आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स है, 13 मेजर पोर्ट्स है, और बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं उनको हम माइनर पोर्ट्स बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जो मेजर पोर्ट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करते हैं उनका ऑपरेशन, और जो माइनर पोर्ट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं। और 13 मेजर पोर्ट्स में से कभी भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। आरबी गेट बी की बात करूँ, कभी भी इसके ऊपर पोर्ट आ सकता है कि ये पोर्ट्स कहाँ कहाँ है। तो हम देख लेते हैं 13 पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे। एक तो कोलकाता पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, पारादीप पोर्ट ये भी वेस्ट ये उड़ीसा में है, और न्यू मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटका में, कोचीन पोर्ट आपका ये केरला में,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये आपका महाराष्ट्र में है, मुंबई पोर्ट अगेन महाराष्ट्र में, कांद्रा पोर्ट आपका गुजरात में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई पोर्ट आपका तमिलनाडु में, टुटिकोन पोर्ट ये भी तमिलनाडु में है, एनोर पोर्ट ये भी तमिलनाडु में है, मारमागोआ पोर्ट ये कर्नाटका में है, एंड पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। तो ये तीनों 13 पोर्ट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आएगा तो इन मेजर पोर्ट्स में से ही आएगा, क्योंकि ये मेजर पोर्ट्स आपको करंट अफेयर्स में भी रेगुलरली दिखते ही रहेंगे किसी ना किसी न्यूज़ को लेके। सो ये 13 मेजर पोर्ट्स आप याद कर लेना। ऑलरेडी मैं जो स्टैटिक वीडियोस होगी उसमें मैं कवर करवाऊंगा, बट करंट अफेयर्स में यहीं पे आ गया तो मैंने यहीं पे इसको कवर भी कर लिया। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ पार्ट टू ऑफ अप्रैल, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल करंट अफेयर्स। 2 ही पार्ट्स में कवर हो गया ये पूरा, थर्ड पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है। सो अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम 2 बार वीडियो को देखो और 2 बार पीडीएफ को रिवाइज करो, और आरबीआई गेट बी एग्ज़ाम से पहले आइडली 1 मंथ पहले एक बार फ्री रिवीजन करो पीडीएफ और वीडियो की, और एग्ज़ाम से 1 वीक पहले एक बार फ्री रिवीजन करो। करंट अफेयर्स एकदम पक्के हो जाएगी आपको। वैसे भी ये काफ़ी कंसाइज टू दी पॉइंट है, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं करंट अफेयर्स में से। फेज़ 1 और फेज़ 2 के सारे करंट अफेयर्स इसमें कवर हो रहे हैं। सो इस सोर्स को स्टिक करो, और मेरा एडवाइस है बाकी का टाइम आप अपना स्टैटिक में लगाओ, क्वांट की प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की करो, स्टैटिक इकोनॉमिक्स की करो, स्टैटिक फाइनेंस की करो, ओके, इंग्लिश की करो, उस पर फोकस करो। सारा का सारा टाइम इस पर बर्बाद मत करना। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। ओके, एनीवे दैट इज़ द एंड ऑफ 4th वीक। अब इस वीक में मैं क्विज़ की वीडियोस लेके आऊँगा और स्ट्रेटेजी की वीडियोस लेके आऊँगा। फिर मैं 5th वीक ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स, जैसे ही सैटरडे और संडे आएगा, सैटरडे संडे को मैं 5th वीक ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स को लेके आऊँगा। सो दैट्स द एंड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ कमेंट इन दी सेक्शन। कोई डाउट हो मेरे से पूछो। ओके, एक चीज़ रह गई इसमें, दैट आई हैव टू कवर, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। ओके, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड। लेट्स सी द टाइम कितना हो गया, 46 मिनट्स। ओके, लेट मी कवर दिस वन। देखो नाउ बहुत केयरफुली देखना आप। एक मैं बात कर रहा हूँ और इंटरेस्ट रेट्स की, एक मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड प्राइस की, एक मैं बात कर रहा हूँ आपकी बॉन्ड यील्ड की। ओके, सी इट केयरफुली, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग कि फाइनेंस के कंसेप्ट भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब देखो, अब मान लो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, अभी आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट और उस सबको कम किया, तो इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट सब कम, इंटरेस्ट रेट कम होएगा मार्केट के, एसबीआई बाकी लैंडिंग में कम हो रहा है। अब जब इंटरेस्ट रेट लैंडिंग के कम होएंगे तो जो डिपॉजिट स्कीम्स है, जो डिपॉजिट्स रेट होते हैं इन स्कीम्स लाइक एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, या पीपीएफ में, या स्मॉल सेविंग स्कीम्स लाइक पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना या किसान विकास पत्र, इसमें जो भी रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो भी डाउन जाते हैं। दे आल्सो गो डाउन ड्यू टू डिक्रीज इन दी इंटरेस्ट रेट्स। ये क्लियर है, क्योंकि जब लैंडिंग के रेट कम होएंगे तो इसके भी रेट कम होएंगे, क्योंकि बीच में जो इसका मार्जिन होता है दैट इज़ नोन एज द स्प्रेड ऑफ अ बैंक। ये मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ स्प्रेड ऑफ अ बैंक। अगर नहीं पता तो पूछ लेना मेरे से, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा व्हाट इज़ द स्प्रेड ऑफ अ बैंक। ये चीज़ आई होप क्लियर होनी चाहिए पहले आपको कि व्हाट इज़ कि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो डिपॉजिट रेट्स है एफडी, आरडी, पीपीएफ, इन सब के कम होंगे। अब आते हैं बॉन्ड्स के ऊपर। ओके, जस्ट वेट। ओके, नाउ सी केयरफुली। अब बॉन्ड्स की मैं अगर बात करूँ, 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले कभी इशू किए गए थे, जो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, और मैं न्यू बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से क्या होगा
जो न्यू बॉन्ड्स है वो भी कम इंटरेस्ट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से 8% पे पहले इंटरेस्ट रेट चल रहा था मार्केट में, नाउ इंटरेस्ट रेट कम होकर 6% हो गया क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, एमएसएफ कम कर दिया, ओके, अदर पॉलिसी रेट्स को कम कर दिया, तो लेट्स से 8% से 6% हो गया। उसकी वजह से मैंने बताया कि आपका डिपॉजिट रेट्स भी कम होएगी, और लेट्स से डिपॉजिट रेट 8% था, जैसे मान लो पीपीएफ में आपको 8% मिल रहा था, एफडी में आपको 8% मिल रहा था, वो कम होके वो भी 6% रिटर्न ही मिल रहा है। लेट्स सपोज रिटर्न जो पीपीएफ और एफडी और आरडी में मिल रहा है वो आपको 6% मिल रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो न्यू बॉन्ड्स में जो लेट्स से जो उनकी जो फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू उसकी 100 थी, और जो कूपन रेट कितना होगा, 6% इंटरेस्ट हो गया तो 6% के आसपास होगा। ओके, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है लेट्स से 2 साल पहले आए थे, 1 साल पहले आए थे, जब 8% इंटरेस्ट रेट था, तो लेट्स से उसकी फेस वैल्यू 100 थी और उसका कूपन रेट उस वक्त 8% था पहले वाले बॉन्ड्स का। ठीक है, ये क्लियर है आपको? आई होप ये क्लियर होगा। अब ध्यान से देखना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है और अब ये जो पुराने बॉन्ड्स है, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है, जो 1 साल पहले, 2 साल पहले या 5 साल पहले जब भी फ्लोट हुए थे, वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो उसमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा है और जो न्यू बॉन्ड्स है उसमें सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगी, इनकी डिमांड इंक्रीज होगी मार्केट में, और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो प्राइस है बॉन्ड का वो इंक्रीज होगा। ये तो क्लियर है ना, डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज होता है। जब आलू की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसका रेट इंक्रीज होता है, जब प्याज की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। तो जिस भी कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होएगी और सप्लाई उतनी नहीं होएगी तो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। तो अब आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उसकी वजह से उसकी वजह से आपका जो बॉन्ड प्राइस है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो है जो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ओके, वीडियो में कमेंट कर देना, मैं फिर से बताऊंगा आपको, एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ओके, डोंट वरी। अब ध्यान से देखो, अब हम बात करेंगे यील्ड की। अब हम किसकी बात करेंगे? यील्ड की। तो यहाँ तक क्लियर है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ कैनवास को। अब देखो, अब 2 चीज़ें थी, एक जो ओल्ड बॉन्ड्स थे या फिर एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स थे उसमें 100 का कूपन जो फेस वैल्यू थी और कूपन रेट था इस पे 8%, और जो मैच्योरिटी वैल्यू थी उसकी वो 108 थी। और न्यू बॉन्ड्स का क्या था? वही फेस वैल्यू 100 थी और जो कूपन रेट था 6 था, और 106 उसकी मैच्योरिटी वैल्यू थी, जो भी टाइम पीरियड के लिए। लेट्स से टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर मान लेते हैं। अब यील्ड की हम बात करेंगे। अब ये 108 माइनस 108 है, दिस इज़ द यील्ड। 108 माइनस 100, दिस इज़ द यील्ड, ये ध्यान रखना, दिस इज़ द यील्ड। मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू में जो डिफरेंस है। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए थे, मैंने पिछले उसमें किया 8% से 6% हो गए थे, जिसकी वजह से बॉन्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया था, बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ हो गया था इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। लेट्स से बॉन्ड प्राइस 100 की जगह बढ़ के हो गया 102, अज्यूम कर लेते हैं कि 100 की जगह अब हो गया 102। अब यील्ड की बात करेंगे, बॉन्ड यील्ड की बात करेंगे। पहले यील्ड जो थी वो 108 माइनस 100 थी, अब जो यील्ड होगी वो 108 माइनस 102 होगी, तो दैट विल बी 6। अब आप ध्यान से देखो, 108 माइनस 100 जो थी वो 8 आ रहा था, 8 वाज दी रुपीज़, 8 वाज दी यील्ड, नाउ ₹6 इज़ दी यील्ड। तो आपने देखा जैसे ही बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हुआ वैसे ही आपकी यील्ड कम हो गई। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुआ बॉन्ड प्राइस बढ़ा और उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड कम हो गई। अगर मैं इस रिलेशन को मैं फिर से लिखूँ क्लियर करके, इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन टू द बॉन्ड प्राइस। एक रिलेशन ये बनता है। दूसरा रिलेशन है जो बॉन्ड प्राइस है, मैं एग्जिस्टिंग बॉन्ड की बात कर रहा हूँ,
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड यील्ड। फाइनेंस का कंसेप्ट है ये, फाइनेंस जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो आराम से समझ जाएगा इसको। और इन दोनों को रिलेट करके एक बनता है कि इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड यील्ड। तो ये 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं। इन तीनों पे फाइनेंस सेक्शन में से कभी करंट अफेयर्स या स्टैटिक कंसेप्ट पूछा जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये चीज़ क्लियर है। अब हम उल्टा केस लेंगे जिसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि वही केस लेंगे। पहले एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की बात करते हैं। 100 वाज थी फेस वैल्यू और उस वक्त जो था 8% इंटरेस्ट था। ओके, अब ये इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ या रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया या कुछ बाकी पॉलिसी रेट्स इंक्रीज़ कर दिए, ये 10% हो गया इंटरेस्ट रेट। अब आप देखो जो यील्ड है, पहले ये 108 के आसपास मैच्योरिटी वैल्यू थी, जो अब इसमें जो 108 है वो मैच्योरिटी। अब जो न्यू बॉन्ड है, क्योंकि मार्केट रेपो रेट और बाकी इंक्रीज़ हो गया, जो न्यू बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 10% होने की वजह से एफडी और आरडी सबके रेट्स इंक्रीज़ हो गए। उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यू बॉन्ड्स है वो 10% के आसपास इशू किए जाएंगे। वो 8% पे नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो जितने भी डिपॉजिट के रेट्स हैं वो भी 10% के आसपास पहुंच गए हैं ड्यू टू इंक्रीज इन। गवर्नमेंट ने उसमें एफडी, आरडी और पीपीएफ इन सब में जो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर दिया, तो न्यू बॉन्ड्स भी महंगे मिलेंगे। अब देखो ध्यान से, अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर गए। अब जो न्यू बॉन्ड्स है उस पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है और जो पुराने बॉन्ड्स है उसमें 8% है। तो ये क्या हो गए, इसमें कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये लेस अट्रैक्टिव हो गए, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कम मिल रहा है इन्वेस्टर को। लेस अट्रैक्टिव हो गए तो इसकी डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो जाएगी तो इसका प्राइस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और प्राइस डिक्रीज होगा तो यील्ड बढ़ जाएगी। कैसे वो भी देख लेते हैं, ये यहीं पे बना लेते हैं। देखो केयरफुली देखना, पहले जो यील्ड थी जो थी 108 माइनस 100, 8 रुपीज़ यील्ड थी। ओके, अब क्योंकि 10% के आसपास न्यू बॉन्ड दी है, उसमें जो यील्ड है वो 110 माइनस 100, दैट इज़ ₹10 इज़ द यील्ड। अब आप देख रहे हो कि यील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, 8 से 10 बन रही है। अब यहाँ पे आ जाओ वापस से, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से बॉन्ड प्राइस कम हुआ, उसकी वजह से आपकी बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गई। वही रिलेशन आ गया वापस, इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेशन टू द बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट्स। अब आप कहोगे ये बॉन्ड प्राइस क्यों कम हुआ, बहुत सिंपल है, डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस कम होगा। पहले अगर वो 100 का था, अब वो 100 का नहीं होगा, अब हो सकता है वो आपको मार्केट में शायद 98 का मिले, कुछ मिले, तो इस हिसाब से उसका प्राइस डिक्रीज़ होगा। सो दैट इज़ दी ऑल कंसेप्ट। इसमें कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, फिर से मैं आपको फिर से बताऊँगा। आई होप इट इज़ क्लियर एंड टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। एंड दिस इज़ अंकुर बदवार। अगर आपको कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि डेली 2 या 3 वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, और बेल आइकन पे आप क्लिक करोगे नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। सो थैंक यू and we will meet again with the next videos. Bye.